So some people think that the main influence on young people's diet is advertising rather than family and friends. To what extent do you agree or disagree? Remember, this is a to what extent topic, right? Agree, disagree. I have told you, whenever you get agree or disagree topic, never ever think like, would you agree or would you disagree? It's just always remember, what do you think? Okay, that will give you a clear opinion to write in your introduction only. Some people, now whenever you have a topic starting from some people, and especially when it's agree or disagree, some people. So first of all, you need to talk about why these people are holding that belief. You have to write because that contributes to your task response. Then you can think about whether you want to go with these people or you want to go against these people. Okay, simple as it is. Now, another thing I have told you, whenever you are reading a topic, make sure to read every single word and understand. Here, now as you can see, let's analyze the topic. Some people, this is one thing. So obviously, what's the reverse of some people? Many. Okay, let's write down like this also. Some people think, now their opinion. So this is opinion based topic, correct? That's their opinion. That the main influence on young people's diet is, one says advertising. Now who is these? Advertising is being said by some people, not by many people. Correct? Advertising is said by some people, not by many people. Main influence. Comparison rather than friends or family. Now, this thing you need to keep in mind. Main. Then you tell me what is your opinion. Keeping in mind each and everything, some people, they are saying the main influence. So not only advertising, but also friends and family encouragement. Right. So what would you say? Is it the main influence? Topic is saying what? No. So now, in order to get a clear opinion, we need to form a question. To what extent do you agree or disagree? No. Let's form the question this way. Do you think that what some people are thinking, that the main influence on young people's diet is advertising rather than family or friends? Do you think that what some people are thinking are correct? Do you think? No. So which means you are disagreeing. Never get confused here that, okay, so which means I'm partial. So which means that, okay, advertising also, family, friends also. This is not a partial statement. Topic is not asking you even that. Topic has a comparison in between. You're only answering with yes or no based on main influence. Do you think advertising is the main influence or not? Obviously, if advertising is not the main influence, which means they both are into the picture. If advertising is the main influence, only you think if advertising is only the main influence, so which means you're going one side. Getting my point? Yes. This is how you analyze a topic. Now, another thing, obviously, as I've showed you, why not it was given, many people think. Topic agree, disagree will always 100%, I'm telling you, will come like this only. When you read each and every word, you will come to know where your opinion can go easily. Now they are saying, some people are only saying, so remember, what's the opposite? Many people.
Many people are not saying that it is the main influence, which means only some people are convinced. So would you go with many people's opinion or some people's opinion? Obviously many people's opinion, because they have come to know some good and interesting fact, then only they are giving some kind of opinion. Some people are only having, let's say, their own thought, belief, but they are not sure, so we cannot go with them. Now here the same thing, some people may influence. No, I disagree. Then this was our first step. Aman, clear? Yes, sir. Our next step, how we need to structure, which means cohesion. Cohesion simple means how you structure your paragraph, which means how many paragraphs. My advice, always 2 paragraphs. I would say you cannot make third. Yes, you can. Very rare. Very rare. Right? Make sure 2 paragraphs only. Now here, what? Some people think that male influence on young people's diet is advertising rather than family and friends. Now, what do you think? Now we have disagreed with the opinion, right? So what do you think? What will be your first body paragraph? Mhm. About advertising. About what? Some people. Some people. BP1 has to be about some people. Now, how you can write this paragraph, or can even think that why BP1 will be about some people? Why? Let's say, first of all, you're disagreeing with something. You're disagreeing with something. What is it? Don't you think so? You have to tell the information first. Why you're disagreeing with that? So which means you need to write what other people, what's these some people are having. So they are having that advertising is the main influence. So obviously they must have seen something for out of which they have come up with this opinion that yes, it is the main influence. So what they have seen, that is what we need to write. So which means that paragraph will come by may, might, this thing only. Possibility, because that is why they assumed it. Right? So, first of all, why some people hold this perception? This is what we'll be writing first. Why they were convinced that they have to come up with this kind of notion. This is what we'll be writing. Then we can easily give our opinion here. However, I do not agree with them much. This is just the planning part. I'm not going to write these words, obviously, very basic words. I do not agree with them much. ज़्यादातर नहीं मैं agree करता. क्यों? अब यहाँ पे देखो हमारे पास है family and friends. Family, friends. Family में कौन कौन आ गया? Parents आ गया. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? छोटे बच्चों की. Young people. छोटा बच्चा किससे पहले सीखता है? एडवर्टीजमेंट से या अपने घर पे पेरेंट्स से सीखेगा. यानी जैसी आदतें उसको डालोगे वैसी आदतें वो लेके चलेगा. दूसरी चीज, दोस्त भी आ जाओ. स्कूल में बच्चे किसके साथ होते हैं? फ्रेंड्स के साथ. अब फ्रेंड्स जो खाना लेकर आएंगे बच्चे वही देखेंगे, उसी को टेस्ट डेवलप करेंगे. उनकी जो ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स है वो सारी फ्रेंड्स से चल रही है और घर पे पेरेंट्स से चल रही है. वो जितना ज्यादा टाइम इनके साथ निकालते हैं उतना एडवर्टाइजिंग पे नहीं निकालते. एडवर्टाइजिंग तो एक मीडियम है, ठीक है, जो टारगेट करती है इन ऑडियंस पे ताकि उनका बिजनेस चल सके, पर वो कितना को देखते हैं. अब एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा. देखो एडवर्टाइजिंग पे भी नहीं आ रहा कि टीवी पे एडवर्टाइजिंग. वो होर्डिंग्स होगी बाहर, जैसे डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं, बच्चों का दिखाया होता है कि पिज्जा वो चीज मेल्ट कर रही है, फोटो खींच दी उन्होंने,
बच्चे देख के पानी आ गया। वो अट्रैक्टिव, वो क्यों, वो टारगेट ही कर रहे हैं। जैसे फेयर एंड लवली की एड में एक काला बंदा खड़ा कर दिया, उसी को फोटोशॉप करके गोरा बना दिया, तभी तो लोगों ने केस कर दिया था। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग, अब यहाँ पर यही है कि कोई हमारे पास मेंशन नहीं है कि टीवी पे या कहीं पे भी, तो आपने ये चीजें भी सोचनी है आपने लिखते हुए, वहां पर आपका सिर्फ टेलीविजन ना आए, ठीक है, तो वहां पे अब टीवी पे होगी, तो ये आपके एग्जांपल्स आ रहे हैं सच एज टेलीविजन, ठीक है, एडवर्ट्स दैट आर एड ऑन टेलीविजन, होर्डिंग्स, ठीक है, बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड्स भी क्या होते हैं, वो भी एक डिस्प्ले होता है सारा जिसपे एड्स होती है, ठीक है, वो लिख के हम आज अपना ऐसे पूरा लिखेंगे। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे BP1 BP2, अगर ये आपके लिए इंफॉर्मेशन, अगर आप लेट्स से एग्री करते हो, ठीक है, अगर आप एग्री करते हो तो विच मींस आप उन सम पीपल के साथ एग्री कर रहे हो, तो फिर भी आपका पहला पैराग्राफ तो सम पीपल का ही रहेगा, तो आप उनके साथ होकर वो पैराग्राफ लिखोगे, आपका वो बीपी चलेगा कैन, विल, वुड के ऊपर, हायर मॉडल वर्ड्स, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी, वो सारा ग्रामर आपको करवाऊंगा मैं एक बार, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप वो लिखोगे, लेकिन सेकंड बीपी में आपको फिर भी अदर्स के बारे में लिखना है। However, there may be some others who are against this approach. वो क्यों? क्योंकि एग्री डिसएग्री में अगर आप ऐसे लिखोगे एक ही साइड पे, मतलब एग्री वाला ही आपने पॉइंट लिख दिया, तो आपने डिसएग्री की बात की नहीं, तो आप कभी भी टास्क रिस्पॉन्स पे ऊपर नहीं स्कोर ले सकते, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि सम पीपल ये लिख रहे हैं, यानी अदर साइड सोचो, अदर भी तो कुछ बैठे, उनके बारे में हमने बात नहीं की, तो वो टास्क रिस्पॉन्स नीचे रह जाता है। क्लियर है? जनरली बस इतना याद रखो, कोई भी ऐसे आ जाए, बहुत ही रेयर होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन को छोड़ के, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब जैसे आता है कि व्हाई इज इट हैपनिंग, ठीक है, वो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ लिखोगे व्हाई इज इट हैपनिंग बस, उसमें आप ऑब्वियसली BP1 में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ये करके अपना लिख दिया, BP2 में इन एडिशन टू दिस, फिर इन कंक्लूजन व्हाई इज इट हैपनिंग, बस उसमें आप ये कर सकते हो, सिर्फ मतलब उसमें अंदर की व्हाई क्यों हो रहा है ऐसा, बस। आगे अगर पूछा व्हाट आर द रीजंस या व्हाई इज इट हैपनिंग एंड सजेस्ट सम सॉल्यूशन, फिर तो ऑब्वियसली आपको फिर दो अलग-अलग पैराग्राफ आ गए। अगर क्वेश्चन के पीछे सिर्फ व्हाई है, वो मेजॉरिटी सिर्फ जनरल ट्रेनिंग वाले बच्चों को आता है, पारिवारिक टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, क्यों लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में शिफ्ट हो रहे हैं, फर्स्ट रीजन ये आपका, दूसरा इन एडिशन टू दिस फर्दर मोर करके आप सेकंड भी बना, इन केस अगर आपको एकेडमिक वालों को आता है तो, ठीक है, अदरवाइज हर एक ऐसे में आपका काउंटर होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट आर्गुमेंट होनी चाहिए, और इसको समझने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास एक ही टॉपिक है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। हर एक ऐसे आपका वैसे ही चलेगा, आप तभी देख लो कोई भी कैटेगरी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दो चीजें हैं, एक ही का फायदा उसी का नुकसान, ये नहीं हो कि एक आइडिया कुछ और फायदा लिख रहे हो, दूसरा आइडिया निकाल के डिसएडवांटेज लिख रहे हो, कोहेरेंस उसमें चला गया, वो क्या होगा, लॉजिक, ठीक है ना। प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम लिखी है उसी का सोल्यूशन दोगे, प्रॉब्लम ये नहीं देनी कि प्रॉब्लम हो रही है बच्चे मोटे हो रहे हैं, सोल्यूशन क्या है, और खाना खाओ, ठीक है, रेस्टोरेंट ही बंद कर दो फास्ट फूड के, अरे कुछ कॉमन सेंस भी चीजें चलती हैं, ठीक है, फास्ट फूड से अगर कोई बच्चा मोटा हो रहा है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन यही बनता है बेसिकली भी, गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस ज्यादा कर दो, बार बार ये भी मत कहो कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के ऊपर रोक लगा दो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, वो कॉमन सेंस भी चीज लेकर चलो प्लीज, नहीं हो सकता, वो सरकार जरूर टैक्स लगा सकती है फास्ट फूड के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैटेगरी बना देगी कि ये फूड जो है, ये मील्स जो है, ये फ्लावर है, जैसे मैदा है, कुछ है, वो फास्ट फूड में काउंट होता है, उसके ऊपर टैक्स, इसका प्राइस बढ़ा दो, लोग कम परचेज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये ले लो कि मैं कुछ बीजेपी के साथ नहीं हूँ, ठीक है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जैसे पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से ये भी लेकर चलो कि ठीक है सरकार तो अपना फायदा सोच रही है, ठीक है, पर एक तरह से ये भी सोचो कि लोगों को इनकरेजमेंट की जरिए भी अब ले लो, टाइम आ गया इलेक्ट्रिक कार्स ले, एक ये भी इनकरेजमेंट है, ठीक है ना। हाँ, वो और बात है कि हमारी सरकार की तरफ से अभी तक चार्जिंग पोर्ट इतने आए भी नहीं है, ठीक है, पर जिन्होंने लिया वो खुश है, ठीक है। टाटा कौन सी नेक्सा बड़ी अच्छी चल रही है, 9-10 लाख की कार है, 8 लाख तो शुरू हो जाते हैं, हाँ 8 लाख तो
हाँ, उसका मैंने रिव्यू देखा, मतलब बंदे बहुत खुश है। 350 400 कुछ किलोमीटर एक कस्टमर आया सर, वो भी 100 किलोमीटर चले सी बस 2 बार ਉਹਨੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੀ। मतलब एक कार ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ हाँ, देखो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन इलेक्ट्रिक कार है। देखो जितना तुम मशीन पीछे बचोगे वेरिएशन तो निकलनी है, ठीक है ना, क्वाइट ऑब्वियस है। बट एटलीस्ट द लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर बीन टेकन टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट। अब जो टेस्ला की गाड़ी आई है वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, तो सस्ता प्राइस होने की उम्मीद है। पर जो गाड़ी उसने 60 लाख समथिंग की, $40,000 हाँ, शुरू हो जाएगी, इंपोर्ट होके कस्टम लग के वो करोड़ में जाएगी। मतलब हमारे तुम्हारे ऑटो लेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये भी लेके चलो, राइट। ओके, अगर मैं करूंगा इसको लिखूंगा, टाइम लगेगा, टाइप ही करता हूँ मैं। आप लिख लो साथ में ये प्लीज ऐसे, ठीक है, मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, साथ में समझेंगे एक एक लाइन बाय लाइन। So some people think that the main influence on young people's diet is advertising rather than family and friends. To what extent do you agree this with me? अब पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका लाइन होगा वो डेफिनेटली आपकी पैराफ्रेज सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी थीसिस एंड देन योर आउटलाइन सेंटेंस। आउटलाइन सेंटेंस होगी कि आप बेसिकली पूरे ऐसे में ओवरऑल कंक्लूड क्या करना चाहते हो। सिंपल तरीके से चलो, एवरी टाइम यू स्टार्ट विद द एसे, सुखजीत आप को कभी भी नाउअडेज, दीस डेज, इन दिस प्रेजेंट एरा या कंटेम्परेरी एरा, कभी भी यहां से मत शुरू करो। क्यों? क्योंकि ये ओवर जनरलाइज्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ लिंकर लगा लो, वो आपको देंगे एग्जीक्यूटिव सोर्स में, ठीक है, वो मैं भी लिख रहा हूँ। या आप सीधा जैरेंड फॉर्म से शुरू कर सकते हो, आईएनजी स्ट्रक्चर कोई भी, वो आपको ग्रामर से स्कोर्स देगा। So there is no gainsaying the fact. देख रहे सबको कि फोन बड़ा करो? There is no gainsaying the fact that अब यंग पीपल की डाइट की बात की जा रही है, तो यानी कुछ ना कुछ देखा जा रहा है उनके अंदर, उनके वेट जो है वो बढ़ रहा है, तभी लोगों ने ओपिनियन देने शुरू किए कि भाई एडवर्टाइजिंग मेन फैक्टर है, ठीक है। उस सेंटेंस में देयर इज नो gainsaying the fact that with an emerging impact of advertisements, with an emerging impact of advertisements, emerging impact मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता हुआ impact of advertisement, young ones habit is becoming, young ones diet habit, young ones diet habit, क्योंकि डाइट है तो इसलिए इज आएगा, ठीक है। young ones diet habit is becoming a mood issue। मूड इश्यू क्या होगा? कंसर्निंग इश्यू, चिंता वाला कारण, ठीक है। इज बिकमिंग बनता जा रहा है, इज बिकमिंग अ मूड इश्यू। क्यों? एज द नंबर ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन इज या आर, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे ऑन द राइज। अब यहाँ पे क्या आएगा? इज की आर? इज, क्योंकि नंबर अपने में सिंगुलर है, उसमें चाहे 1 हो या 10 मिलियन नंबर ही क्या है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है,
बच्चों का, इसलिए इज हो गया, नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, कभी भी हम ये भी नहीं कहते कि नंबर बढ़ रहे हैं, नहीं, नंबर बढ़ रहा है तो वो सिंगुलर में आता है। सिमिलरली आज ये ना एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आप सबको शेयर भी करूंगा, ये भी जाएगी यूट्यूब पे। मैंने ना कुछ सुना लोगों को बोलते हुए कि आई हैव स्पेंट ₹50 lakhs on to Yes. lakhs नहीं होता, lakh होता है। ठीक है, आई हैव स्पेंट 50 lakh, I have spent 20,000 crore or crores. Yes, that's 1 million. हैं? Thousands होते हैं। Sir, media plays तो नहीं आएगा। मीडिया प्लेस अपने आप में वो सिंगुलर है, और वो उसमें मीडिया सारा कुछ कवर होता है। ये सारे वर्ड्स वही है, नंबर वही चीज है, सेम। As the number of overweight children is on the rise, की सॉरी, जिसने लिखा वो भी ठीक है, ऑन द राइज। चलो अब कुछ लोग कह रहे हैं, देखो जब आपके पास टॉपिक में अब आपको मैं वाइल स्ट्रक्चर करता हूँ। यहाँ पे वाइल आपको पता है हमने किया था, जैसे हम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, नहीं, ऑल्दो। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं ऑल्दो, इनके साथ क्या होता है, दो क्लॉजेस होते हैं। जहां पे ये चीज हो रही है वहां पे ये चीज हो रही है या होएगी, जहां पे यानी एक क्लॉज वहां पे एक क्लॉज। अब यहाँ पे कह रहे हैं, जहां पे कुछ लोग ये कह रहे हैं मैं उनके साथ नहीं हूं या मैं कुछ और क्या, हम उस तरीके से वाइल यूज करते हैं। आ जाओ, वाइल few cohorts, ये मैं वर्ड की थी। ठीक है, कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। While few cohorts are convinced that adwords, advertisement को adwords, endorsement, ठीक है, adwords targeting the young residents to shape their preferences of food have higher influence than family and friends। ठीक है, ये हो गया आपका वन साइड का क्रॉस थ्रो, जो ऊपर अब लोग कह रहे हैं। सर एडवर्ड्स में और की बोले एंडोर्समेंट, EN, ठीक है, एंडोर्समेंट। While few cohorts are convinced, ठीक है, जहां पे बेशक कुछ cohorts हैं वो convinced हैं, जो कुछ लोग हैं वो convinced है कि जो adwords है वो targeting the young residents to shape their preferences of food have higher influence than family and friends। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, मैं उनके अगेंस्ट में, I however, I आपका दूसरे तरीके से हो जाएगा टाइपिंग में, I however, comma, Friends who are common. do not, friends will comment, ठीक है, I however do not accord, do not accord का मतलब disagree, I however do not accord with this notion, with this notion मतलब इस belief के साथ, I do not accord with this notion। क्यों, अब उसका रीजन वो हो गया आपका आउटलाइन सेंटेंस, since it is the, अब हमें पता है, अब नर्चरिंग अपब्रिंगिंग, ये दो वर्ड्स है, अब नर्चर को नीचे लेंगे, अपब्रिंगिंग को यहाँ पे, वैसे वर्ड्स जैसे मर्जी आप, ठीक है, since sorry it is the upbringing, this is the upbringing of a child which shapes his eating habit। बस अब आप पढ़ के देखो, as an examiner yourself, do you find the opinion being very clear? आपको बस वहां पे ये करना है,
अपना ओपिनियन क्लियर रखना है। अगर बाय चांस आपसे ओपिनियन नहीं लिखा जा रहा वहां पे उस टाइम पे, वो जगह छोड़ दो, BP1 BP2, क्योंकि कंक्लूजन में तो आप ओपिनियन दोगे ही दोगे, रिफ्रेश करोगे, उसी को उठा के अपना लाइन कंटिन्यू करता है इंट्रोडक्शन में। एक सेंटेंस आपका मुश्किल सा बनता है। अगर इन केस आपसे नहीं बनता वहां पे, बिल्कुल भी नहीं, फिर भी वर्स्ट लेके जो नहीं बनता, तो सिंपल आप यहाँ पे आई डू नॉट अकॉर्ड दिस इन गिवन नोशन, फुल स्टॉप डाल दो, खत्म। कोई लिखने की जरूरत नहीं है कि एंड माय व्यू विल बी एग्जिबिटेड, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आई डू नॉट अकॉर्ड विद दिस नोशन, उसका मतलब ये हो कि आप डिसएग्री कर, पर मैं आपको फिर कहूंगा कि उसका एक्सपेक्ट मत करो कि आपको 1.5, ठीक है, जो बैंड्स को मैंने समझाया था जिस तरीके से मिलता है वो मिले। सिंपल है, क्योंकि आपको ओपिनियन क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ अपना थीसिस बताया कि आप डिसएग्री कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो वो नहीं पता, वो इंफॉर्मेशन पहले बता दी। पढ़ के देखो। अमन क्लियर है बिल्कुल? यस सर। सुजीत वानो क्लियर है बिल्कुल? Yes. थीसिस का मतलब सिर्फ कि आप हाउ या नाउ, बस। थीसिस का मतलब ये है, आप ओपिनियन यू एग्री, यस, यू डिसएग्री, या डिसएग्री, ये आपकी ओपिनियन होगी। व्हाई? बिकॉज आई बिलीव, ये होगी आउटलाइन। मतलब कि अब आउटलाइन क्या, ये एस से आपका क्या समझा, आउटलाइन का मतलब ओवरऑल लिखते हो ना टास्क 1 पे आप, ओवरऑल आउटलाइन है वो, ठीक है। मतलब ओवरऑल में आपने लिख दिया कि ये जनरल जो मैं नीचे बताऊंगी उसमें क्या होगा इंफॉर्मेशन, उसके बाद डिटेल्स आपकी BP1 BP2 में होगी। सिमिलरली कोई चीज तो नहीं होगी, ठीक है। बस ओवरऑल की बजाय आप यहाँ पे लिख लो एज आई बिलीव, ठीक है, एज आई बिलीव ठीक है, राइट। अब BP1, अब सम पीपल, पहले हम ये बात कर बताएं कि वो लोग ऐसा क्यों सुझाव दे रहे हैं। चलो so linker to initiate with the proponents of children getting highly influenced by watching too many endorsements. SC. To initiate with the proponents. Proponents हो गए supporters of children getting highly influenced by watching too many endorsements. ठीक है, अब ऐसा क्यों वो कहते हैं? The core reason हो गया मेन रीजन, ठीक है। The core reason of their कौन हो गए? वो प्रोपोनेंट्स, ठीक है। ये वर्ड्स their, this, such, ठीक है, it, ये वर्ड्स भी जरूरी है खासकर, ठीक है। क्योंकि आपका फिर टॉपिक सेंटेंस आपका जो आपने पहले बात की है वो रिपीट नहीं होती, इसलिए। सो द कोर रीजन ऑफ देयर बिलीफ क्या है? इज that advertisements कौन सी? especially those targets teenagers and related to food and beverages क्या करती हैं? spend a big chunk of money. किस लिए? To allure, attract करने के लिए, them, to allure them to a
better living standard, ठीक है, टूरिज्म तो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि ज्यादातर क्या होती है, which are झूठी होती है, which are most of the cases lies, ठीक है, झूठ होती है। अब लोग यार फेक भी क्या झूठी होती है, ठीक है, फेक होती है। द कोर रीजन, अब ये जितनी ज्यादा देखो, अब एडवर्टीजमेंट चाहे आप केएफसी के बाहर देख लो, मैकडॉनल्ड्स के बाहर, डोमिनोज के बाहर देख लो, ठीक है, वो कहते हैं एंजॉय करो, ये करो, इतना ज्यादा है, ये ऐड है, उस पे कभी भी नहीं मेंशन होता कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, कभी भी नहीं मेंशन होता। किसी भी आप चाहे सबवे के बाहर भी चले जाओ, ठीक है, वहां पे कभी नहीं लिखा होता कि हेल्दी फूड, हमेशा वहां पे ग्रीन डॉट वेजिटेबल का या रेड डॉट नॉन वेज का, ये हमेशा होगा, कभी भी नहीं लिखोगे हेल्दी है नहीं हेल्दी। अगर आप मार्केट से कोई चीज परचेज करोगे, ठीक है, कोई वेजिटेबल जो पैक्ड आती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इतना ये हेल्दी है, ठीक है। तो हमेशा जिम वाले क्यों नहीं कभी सबवे या पिज्जा में पूछते हैं, और वो लोग हमेशा सुपरमार्केट क्यों जाते हैं, क्योंकि उस पे पैकेट पे लिखा होता है कि ये कितना हेल्दी है, हमेशा परसेंटेज लिखी होती है, 72% हेल्दी, 62% हेल्दी, ये वो, पर इनके ऊपर कभी भी नहीं होते, तभी ये हमेशा मैनुअली प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि वो जनरेट हो सके टेस्ट पर, वो अच्छी चीज दिखने में, फोटो खींची बात लगा दे, वो अट्रैक्ट करती है फ्रेंड, वो अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड, अब किसी को मैं पूछूं भाई अब लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे समझाऊं मैं, जैसे मैं आपको पूछता हूँ अजय पिज्जा खाती हो आप, नहीं सर बहुत रेयर खाती हूँ, अच्छा कहाँ से खाती हो, सर वो हमारे ना एक सड़क पे आता है एक बंदा तंदूर लेके वो बना के, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। बेहद पिज्जा खाती हो, यस, कहाँ से, डोमिनोज, ओके, क्योंकि वहां पे कॉस्टली बिक रहा है, ठीक है। तो जितना भी डोमिनोज है कोई भी है, वो लोग एड्स लगाते हैं ताकि वहां पे कस्टमर जाए, कस्टमर को देख के दूसरा कस्टमर आता है, बच्चे जिद करते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात होगी तो ऑब्वियसली वो जनरल ईथर को होती कौन सी एड्स है जो रिप्रेजेंट कर रही है खाने वाले, वो लाइज होती है, ठीक है, ये चीज होगी। चलो अब इससे होता क्या है, जो ये इतना ज्यादा मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगाया जाता है, इतना ज्यादा ये लाइज बोला जाता है, इससे होता क्या है, रिजल्ट बता देते हैं। सो कॉन्सिक्वेंटली यंग पीपल आर ट्रैप्ड, वो ट्रैप ईडी आ गया आर के साथ, मतलब वो फंस जाते हैं, ठीक है। यंग पीपल आर ट्रैप्ड, वो लोग फंस जाते हैं, मतलब अभी भी हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी, ये जनरल में बोल दिया, पैसे बना, यंग पीपल गेट ट्रैप्ड या आर ट्रैप्ड, ठीक है। तो कहाँ गया, ओके, सो यंग पीपल आर ट्रैप्ड एंड प्रिफर जंक फूड, बजाएगी किसके, देन होम कुक्ड मील्स, ठीक है। होम कुक्ड, होममेड कुछ भी क्या होता है, होम कुक्ड मील्स, वो इसको प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखो पीछे ऐसे पीछे लेके चलो, लिंक ताकि बने, वो लोग फास्ट फूड प्रेफर करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एड्स ऐसी एल्योर, वो एल्योर करती है, उनको ज्यादा अट्रैक्ट बना देती है, ऐसी एड्स जिनपे काफी चीज स्पेशल झूठ होती है, पर वो उनको फैंटेसाइज कर देती है कि आप ये चीज खाओ, ताकि उनको उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो बेटर लाइफस्टाइल है, ठीक है, वो दर्शाती है कि हाँ जी आपका लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगा कि यहाँ पर आप खाओगे। तो इस बेस पे लोगों का सजेशन आना शुरू हो गया कि नहीं, इस चीज को एडवर्टाइजिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। अभी एग्जांपल देते हैं, उसको क्लियर करते हैं। सो हर एक पीपी में एग्जांपल तो देना ही देना है। फॉर एग्जांपल सर्वे लगा दो, अ रीसेंट सर्वे कंडक्टेड ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स। अब मैं ऑब्वियसली स्कूल स्टूडेंट्स की तो बात कर नहीं सकता, कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूंगा, यंग वंस वही आएंगे, ठीक है अपने। सो टीनेजर्स हो गए, अपने टीनेजर्स भी ऑब्वियसली कब तक चलते हैं, 19, correct. So college going on again. So for example, a recent survey conducted on college students. ठीक है, कहाँ पे, in the city of New Delhi, जिसका N कैपिटल D कैपिटल,
कभी भी सिटी का या कंट्री का नाम लिखोगे तो पहला लेटर कैपिटल आना ही आना है, कॉमर्स में नहीं आएगा। ठीक है, कॉमर्स में सिर्फ किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम या कोई यूनिक कैंपेन या कुछ, वही सिर्फ कॉमन में आएगा, सिंगल, अब दो में नहीं, सिंगल कॉमन। जैसे हमने वो ऐसे किया था गो वॉकिंग कैंपेन, गो वॉकिंग का कॉमर्स में आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अ रीसेंट सर्वे कंडक्टेड ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स इन द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। अब क्या पता चला, ठीक है, revealed that more than percentage, more than 62% of children prefer pizza, Subway, and burger than the foods their mothers prepare at home। ठीक है, अब हम छोटा सा एक पॉइंट, अब ये हमारा एक पॉइंट ये पूरा डेवलप्ड हो गया, एग्जांपल आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेटेजी थी हमने BP1 की थी, स्टेट योर पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जांपल, शॉर्ट समरी, वो पूरी होगी। एक एडिशनल पॉइंट बना देते हैं, वो ये भी है कि आखिर एडवर्टाइजमेंट को देखो, ये पॉइंट आना क्यों जरूरी है अभी दिमाग में, क्योंकि ये पॉइंट देखो कि जो एडवर्टाइजिंग है वो बच्चा देख क्यों रहा है। ठीक है, वो जो एडवर्टाइजमेंट देख रहा है बच्चा, वो आखिर देख क्यों रहा है, वो देख इसके रहा है क्योंकि उसको कोई नॉलेज नहीं है कि वो जिस चीज से फैसिनेट हो रहा है कि वाकई उसके लिए अच्छी है कि नहीं है। तो उनको क्या है, उनको बैलेंस्ड डाइट के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, एक ये डाल देते हैं, मदर्स का है Last slide, third, fourth. न्यू दिल्ली करेक्ट, एक माँ। ओके, सो आगे चलो, फर्दर स्टडीज explain that those students have little conscious of balanced diet and are exposed, अब यहाँ पे आप अपना टेलीविजन ले आओ, exposed to TV and online एडवर्टीजमेंट्स। अब ये लाइन देखो, क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार ये लाइन जरूरी है, क्योंकि हमने अब जो एडवर्टाइजिंग की है उसको पूरा कर दिया। एडवर्टाइजिंग आप ऑनलाइन देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, उनको वो देख क्यों रहे हैं, क्यों बंदा कह रहा है, कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि भाई ज्यादा ये इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्टाइजिंग, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भी देखो बच्चे जो देख रहे हैं उनको पता ही नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, इसलिए वो लोग ज्यादा प्रेफर करें ना टीवी और ऑनलाइन एड सब देखते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है BP1 बिल्कुल? अमन यस सर। लिख ले सबने। अब BP2 जी सर। हमारा, ठीक है, हम डिसएग्री करते हैं फैमिली, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ, मतलब इंपॉर्टेंस सॉरी मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ, हम ये करोगे बेसिकली फैमिली और फ्रेंड्स कि उनसे बच्चे कैसे इंस्पायर होते हैं, वो लिखते हैं। चलो काउंटर करो, यहाँ पे आज कराता हूं आपको हैविंग सेड दैट, ठीक है, हाउएवर अगर आपने लिखना तो आप हैविंग सेड दैट लिख सकते हो, रिमेंबर उसके साथ कॉमा आएगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दैट के साथ नहीं आएगा, लेकिन हैविंग सेड दैट के साथ आपको कॉमा आएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे बीपी अपना आईएनजी से एक शुरू करना है, कोई भी पैराग्राफ चारों में से, ठीक है, एक पैराग्राफ को आईएनजी से शुरू करना है। सो हैविंग सेड दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड आ गया, फैमिली एंड फ्रेंड्स दो चीजें होगी, तो हैव की हैड, Have. Have.
हैज नहीं आएगा, No. Singular. Singular. She has. ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव ग्रेटर influence on teenagers eating habits, नहीं habit, अब ये सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। Having said that, family and friends have greater influence on teenagers eating Yes. habits. Correct. Articles, याद रखो, have a greater influence, हमने उस दिन किया था ये सारी चीजें। जब अगर ER का वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो a huge, big, majority, a major impact, उसमें वो प्लूरल जितना मर्जी हो, पर सिंगुलर हो गया ना वर्ड, अब ग्रेटर तो सिंगुलर में आ गया, तो अ आएगा उसके साथ। ठीक है, ग्रामर रिवाइज करनी पड़ेगी। गुड जन, पता सब कुछ है पर फिर भी लिखना नहीं है। हाँ जी। Having said that, family and friends have a greater influence on teenagers' eating habit. अब इसको समझाते हैं क्यों। To be precise, इसके भी आपको lexical resource second clause में कहते हैं कि बच्चा directives use कर रहा है। अब to be precise, to explain this is because the core reason जो हमने पहले लिखा, हम for example क्यों लिखते हैं? हम फॉर एग्जाम्पल क्यों लिखते हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो जब एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो क्यों नहीं बता रहे हो कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? समझ रहे हो? टू बी प्रिसाइज, अब इसको प्रिसाइज मींस स्पेसिफिक। टू बी प्रिसाइज, अ फैमिली हैज अ फैमिली सिंगुलर, फैमिली में कितने लोग आ जाए कोई टेंशन नहीं, पर एक उसको फैमिली कहा जाता है। सो has a greater role इसमें in shaping a child's food intake। ठीक है, फैमिली एक बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करती है शेप, यानी उसको फॉर्म करने में कि बच्चा किस तरीके का खाना खाए। सो इन शेपिंग द इनटेक ऑफ चाइल्ड। ठीक है, intake habit and scientific studies ने भी ये चीज प्रूव की है। scientific studies prove that the diet habit is deeply rooted in the type of food people eat, नहीं during आएगा, सॉरी, in their childhood। ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज ने भी ये चीज साबित की है कि जो डाइट हैबिट है वो डीपली रूटेड है। मतलब डीपली रूटेड मतलब उसकी जड़ें लगी हुई है। ऑब्वियसली कब से? जब से छोटे बच्चे। ठीक है, अगर आज मैं ज्यादा पिज्जा पुज़ा बर्गर खा रहा हूँ तो इसलिए खा रहा हूँ, ये छोटे होते मैंने शुरू किया था, वो नहीं खाती है तो उसने शुरू से नहीं खाया। सच है, मैंने शुरू से मटर नहीं खाया तो मुझे नफरत है। सीरियसली, किसे? मैं छोटे होंगे मैं कच्चे खाती थी। अब रूट समझ आ रहा है मुझे क्यों नफरत है। जब आप कच्चे खाओगे तो आलू भी कच्चे खाए आप मोटी मोटी चीजें पर लग गया कितने अखा में लग रहा है ऐसे। जो तो हंसती है तार होती है तो रोएगी ना रोएगी। Just make sure when you go Canada, remember you don't need a hanky.
White. You need a big scarf. वो थे गोरे देखा बहुत मतलब conversation बहुत funny होते हैं. So be prepared. You're about to become a center of attraction in the university. They might ask you, okay, Bianca, you're going to talk about this. सर ये शुरू में नहीं हुआ मुझे पढ़ना पड़ेगा नहीं हम रखेंगे. चलो. So in the childhood ठीक है. अब result. Therefore कभी भी so like नहीं आएगा. So तो मतलब जड़ में लगा लो कि नहीं आना उसने कभी भी. Therefore if a teenager, मैं यहाँ पे should नहीं लिख रहा ठीक है क्योंकि अभी सुजीत को करवाया नहीं है. So if a teenager has, teenager singular हो गया, has a bad habit. ठीक है अगर teenager इसकी bad क्या होती है, bad has a bad eating habit rather लेके चलो eating habit. ठीक है has a bad eating habit तो क्या होगा, किसको blame देंगे, family को. The blame ठीक है the family यहाँ पे ये लिख लो, the family is to blame. The family is to blame for that. Study scientific, obviously scientific से हमने लिख दिया. अब वो क्या है वो हम एग्जांपल में बताते हैं ठीक है, पर हमने ये लाइन एक तरह से फैक्ट से लिख दिया. रीडर भी बंदा कहेगा हाँ यार अच्छा साइंटिस्ट ने कह दिया फिर तो सच वचन है. ठीक है ना. साइंटिफिक स्टडी से ये चीज साबित हो गई कि भाई अगर किसी बच्चे की भी कोई बुरी आदत खाने की है तो यानी उसके पेरेंट्स को पहले पकड़ो, बच्चे की गलती नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा वही सीखेगा जो उसको दिख रहा है. वो दिखने में या वो टीवी है या उसके पेरेंट्स है या उसके फैमिली फ्रेंड्स है. ठीक है अब क्योंकि वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है तो उनको पकड़ो. ठीक है चलो एक और पढ़ लेते हैं. हमने मोरओवर नहीं यूज किया ना. चलो मोरओवर तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितना टाइम हो गया मैंने यूज नहीं किया. ऐसा जैसे हाँ ऐसा तो जैसे मुझे नफरत ही होगी. मोरओवर व्हेन अ चाइल्ड, अब हम क्योंकि फ्रेंड्स का बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, फैमिली का तो क्लियर हो गया. अब फ्रेंड्स का अगर छोड़ दूंगा तो स्कोर नीचे जाएगा मेरा क्योंकि टॉपिक में फ्रेंड्स और फैमिली दोनों है. सो व्हेन अ चाइल्ड starts making friends, ठीक है, he is क्योंकि चाइल्ड की बात चल रही है significantly सॉरी he is नहीं आएगा, he जनरल में बता रहे हैं कि he significantly gets influenced by his friends eating and drinking habits. ठीक है. So moreover when a child starts making friends he significantly gets influenced by his friends eating and drinking habits. अब इसको एग्जांपल देते हैं. For instance ऊपर एग्जांपल यूज किया तो यहाँ पे इंस्टेंस आता चलो. For instance या to illustrate, ठीक है, for illustration कुछ भी लिख लो. Based on a recent research, सर्वे ऊपर कह दिया था ठीक है, रिसर्च के स्पेलिंग गलत हो गए, सॉरी अबाउट दैट. सो बेस्ड ऑन अ रीसेंट रिसर्च कहां पे हुई थी, पब्लिश्ड हुई थी. Based on a recent research published in a magazine published in a magazine. Research published, magazine का नाम भी लिखते हैं, लिखना पड़ेगा क्यों. Research in the magazine. अब देखो मैगजीन का नाम रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है, ये कॉमर्स में यूनिक. बेस्ड ऑन अ रीसेंट रिसर्च पब्लिश्ड इन द मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट, क्या चीज हुई, कॉमर, मोर देन 70% of
school going teenagers try to mimic, copy करते हैं the diet habit of their friends who they spend time with. कहाँ पे? At सर तो 70% वाला तो 60%. कोई चक्कर नहीं, वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट है, ये कुछ और कॉन्टेक्स्ट है। तो वो एडवर्टाइजिंग है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉੱਠੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਾਰ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂड्स, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ऊपर आप गल कर रहे हैं कॉलेज से, ऐसे आप स्कूल फ्रेंड्स से गल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? ऐसे 70% क्यों लिखे? ऑब्वियसली क्योंकि मैंने 62 तो ज्यादा ही रखना है। उसे कॉलेज गोअर्स भी एडवर्टाइजिंग चलो करके अपना प्रेफर कर रहे हैं, ऐसे 70% स्कूल स्टूडेंट्स क्योंकि फ्रेंड्स कॉपी आप अगर ना मिमिक्री कर सकते हो चालू नहीं बनती, यस, मतलब उसी तरीके ना बोलना, गल करना, सब कुछ, ठीक है, एक्टिंग करनी है प्रॉपर, राइट। सो हुन आप खत्म करिए इसको बोल के, दिस स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स होगी तुम्हारी, सो दिस स्टैटिस्टिक्स clearly reveal that family members and black, just black. सिर्फ black, बस दो बॉटल्स लेना। This statistics clearly reveal that family members and friends have more influence on the choices of foods and as well as little added or as well as drinks than the advertisements children की वजह से छोटे बच्चे होंगे, youngsters are exposed to। बताओ क्लियर है बिल्कुल ये लाइन? ठीक है, सो ये स्टैटिस्टिक्स से ये चीज साबित होती है, रिवील होता है, साबित होती है कि जो फैमिली फ्रेंड्स और जो फैमिली है या फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर ईटिंग हैबिट्स का रादर देन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सो टू कंक्लूड, हमारा शन नहीं बज रहा है इतने, इन कंक्लूजन नाउन होने चाहिए ऐसे नाउन, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। आपकी देखो ग्रामर, सॉरी आपके देखो वर्ब्स तो आ ही रहे हैं, तो नाउन कम रह जाता है, इसलिए ऐसा नहीं कि नाउन नहीं है, नाउन्स आए हैं, पर हमारे क्योंकि कलेक्टिव और अनकलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, हमारे कलेक्टिव आगे, अनकलेक्टिव ये इन क्षण वाले होते हैं जो वर्ड्स, ठीक है। सो इसलिए इन कंक्लूजन कॉमा फूड हैबिट इज significant नहीं, food habit is significant part of our life, क्यों? As it defines who we become and how healthy we would be in future। ठीक है, advertisements to a certain extent
advertisements are going to have an impact on young people's diet. However, family and friends have an even greater role. That's it.